موسم گرما میں اچار کی تیاری کے لیے سبزی پھل کی خریداری. کچا اچاریاں 100 سے 120 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے. باریک سبز مرچ 120 اور موٹی سبز مرچ 180 روپے فی کلو میں دستیاب ہے. چھوٹا چائنا لیموں 600 روپے کلو تک ہے. مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زاہد عابد سے. جی زاہد. جی بالکل، موسم میں تبدیلی آتی ہے تو معمولات زندگی اور کاروبار زندگی میں بھی تبدیلی دیکھی جاتی ہے. آج کل اسی قسم کے حالات مارکیٹ میں نظر آتے ہیں اور کئی کاروبار عارضی طور پر شروع ہو جاتے ہیں موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی. آج کل مارکیٹ میں آپ کو چیزیں نظر آئیں گی جس میں کچے آم نظر آئیں گے زیادہ تر، جو کہ اچار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ اچار ویسے تو سارا سال دستیاب رہتا ہے، لیکن اس موسم میں اس کی تیاری زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی جو متعلقہ اشیاء ہے وہ مارکیٹ میں زیادہ دستیاب ہوتی ہیں. آم آج کل زیادہ دیکھا جا رہا ہے، کچا آم جو کہ اچاری آم کہلاتا ہے وہ تقریباً 100 سے 120 روپے فی کلو تک اس وقت مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے، اور اگر اسے باقاعدہ تیار کروا کے کٹوا کے لیں گے تو اس کا اضافی چارجز بھی لیے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لسوڑا آج کل مارکیٹ میں دستیاب ہے، تو آج کل مارکیٹ میں لسوڑا 200 روپے فی کلو تک بیچا جا رہا ہے اور یہ اچار کے لیے زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے. اسی طرح ہری مرچ کا اچار بھی استعمال کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، اور ہری مرچ کی آج کل وافر مقدار مارکیٹ میں نظر آتی ہے. جو بڑی ہری مرچ ہے وہ تقریباً 180 روپے فی کلو تک بیچی جا رہی ہے، جبکہ چھوٹی ہری مرچ، باریک ہری مرچ ہے وہ 120 روپے فی کلو تک بیچی جا رہی ہے. لیموں کا اچار بھی ڈالا جاتا ہے آج کل، اور لیموں مارکیٹ میں دستیاب ہے، لیکن آج کل کافی مہنگا ہے لیموں. جو چھوٹا لیموں اچار کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ تقریباً 550 سے 600 روپے فی کلو تک مارکیٹ میں دستیاب ہے. بڑا لیموں جسے لیموں دیسی کہا جا رہا ہے وہ بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے، لیکن وہ زیادہ تر اچار کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. تو مارکیٹ میں جیسے جیسے وقت آتا ہے، موسم آتا ہے، اس کے حساب سے تبدیلیاں بھی دیکھی جاتی ہیں. تو آج کل تھوڑا سا اچار بنانے کا جو ماحول ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے زاہد، آپ کا بہت شکریہ. اپنا خرچہ خود اٹھاؤ اور ایشین گیمز کے لیے جاپان جاؤ. پاکستان ٹیبل ٹینس فیڈریشن نے منتخب کھلاڑیوں کو ٹکٹ، رہائش اور اخراجات خود برداشت کرنے کا کہہ دیا ہے. ٹرائلز دینے والے کھلاڑیوں کے لیے بھی کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں رکھا گیا ہے. تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں محمد عاقب سے. جی عاقب. دیکھیں، پاکستان میں کھیلوں کے لیے ایک اور افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے. ذرائع کے مطابق پاکستان ٹیبل ٹینس فیڈریشن کی طرف سے نااہلی سامنے آئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اپنا خرچہ جو ہے وہ کھلاڑی خود اٹھائیں اگر انہوں نے ایشین گیمز میں حصہ لینا ہے، جو کہ جاپان میں شیڈول ہیں. ایشین گیمز میں پاکستان کی نمائندگی خواب جو ہے وہ چکنا چور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ قومی پلیئر جو ہیں انہوں نے اپنا مائنڈ اپ بنا لیا ہے کہ اگر فیڈریشن ان کی مدد نہیں کرتی تو وہ اس کھیل کو چھوڑ دیں گے. جبکہ پاکستان ٹیبل ٹینس فیڈریشن نے ایشین گیمز کے لیے منتخب ہونے والے کھلاڑیوں کو ایئر ٹکٹ، رہائش اور یومیہ اخراجات خود برداشت کرنے کا کہا ہے. اس کے ساتھ ٹرائلز دینے والے کھلاڑیوں کے لیے بھی کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں دیا گیا، جبکہ کھلاڑی فیڈریشن کے رویے سے مایوس ہو کر مستقبل کے بارے میں سوچنے لگے ہیں. کئی پلیئرز نے ایونٹ میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ ٹیبل ٹینس کے سنگل اور ٹیم ایونٹس میں صرف 11 کھلاڑیوں کے حصہ لینے کا امکان ہے. دوسری طرف سلیکشن کمیٹی نہ بنا کر بھی ایس او پیز کی کھلی خلاف ورزی کی گئی ہے. دوسری طرف جب پاکستان سپورٹس بورڈ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ان کے ذرائع نے بتایا کہ ہمیں اس معاملے کا علم نہیں ہے، اگر ان تک معاملہ پہنچے گا تو تب وہ دیکھیں گے. جس کے بعد جو ہے ایشین گیمز جو کہ جاپان میں ہونی ہے اس میں پاکستان ایتھلیٹ جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں. جی عاقب، بہت شکریہ آپ کا. وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے. محرم الحرام کی مناسبت سے سیکیورٹی اور انتظامی امور کا جائزہ لیا گیا ہے. ڈی سی لاہور کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز نے جلوسوں اور مجالس کے روٹس پر انتظامی امور کی تیاریوں بارے آگاہ کیا ہے. تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زین العابدین سے. جی زین. زین، اگر سن پا رہے ہیں تو اجلاس کے حوالے سے بتائیے گا. زین سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو بتا رہے ہیں وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے. محرم الحرام کی مناسبت سے سیکیورٹی اور انتظامی امور کا جائزہ لیا گیا ہے. ٹی سی لاہور کیپٹن ریٹائر علی اعجاز نے جلوس اور مجالس کے روٹس پر انتظامی امور کی تیاریوں بارے آگاہ بھی کیا ہے. وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت یہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے اور محرم الحرام کی مناسبت سے سیکیورٹی اور انتظامی امور کا جائزہ لیا گیا ہے. اور ڈی سی لاہور کیپٹن ریٹائر علی اعجاز نے جلوسوں اور مجالس کے روٹس پر انتظامی امور کی تیاریوں بارے آگاہ بھی کیا ہے. ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتاتے چلیں وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے. محرم الحرام کی مناسبت سے سیکیورٹی اور انتظامی امور کا
जायज़ा लिया गया है। DC लाहौर कैप्टन रिटायर अली एजाज ने जलूस और मजालिस के रूट्स पर इंतजामी अमूर की तैयारियों बारे आगाह किया है। आपको बता रहे हैं वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया है। मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से सिक्योरिटी और इंतजामी अमूर का जायज़ा लिया गया है। शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 4 रोज़ गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। जुमेरात को बारिश की नवीद भी सुना दी है। मोहम्मद आकिब से मज़ीद जानते हैं जो इस वक्त लाहौर का मौसम का अहवाल बता रहे हैं। जी आकिब। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में इस वक्त मौसम जो है वो काफ़ी गर्म है और गुज़श्ता 2 रोज़ से जो मौसम जो है अच्छा हो रहा था और शहरियों ने कुछ सुख का सांस लिया था, आज सुबह से ही गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफ़ा दिखाई दे रहा है। और महकमा मौसमियात की तरफ से भी ये बताया गया है कि अगले 4 रोज़ में जो है वो लाहौर में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफ़ा होगा। इस वक्त तेज़ धूप निकली हुई है और धूप में भी जो है वो काफ़ी शिद्दत महसूस की जा रही है। टेम्परेचर आल्दो इस वक्त 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और फील्स लाइक 39 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा भी चल रही है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो गर्मी का एहसास जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ महकमा सेहत ने जो है वो शहरियों को मोहतात रहने का कहा है और गैर ज़रूरी सफ़र से भी गुरेज़ करने का कहा है। चूँकि आज इतवार है, सड़कों पर ट्रैफिक भी आज जो है वो निस्बतन कम है, लेकिन जो शहरी जो है वो ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं और गैर ज़रूरी सफ़र से भी कई शहरी जो है वो परहेज़ कर रहे हैं, लेकिन जिनके ज़रूरी काम है वो सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है जुमेरात के बाद जो है वो बारिश की एक स्पेल की उम्मीद की जा रही है, जो कि 1 या 2 रोज़ में महकमा मौसमियात की तरफ से मज़ीद कन्फर्मेशन होगी कि जुमेरात या जुमे को जो है वो एक बारिश का स्पेल आएगा, जो कि मज़ीद शहरियों के लिए सुख का सांस लेने का बाइस बनेगा। जी आकिब, आपका बहुत शुक्रिया। शदीद गर्मी में शहरियों ने गन्ने के रस के स्टॉल्स का रुख कर लिया है। शहरी गन्ने का रस पीकर गर्मी भिगाने लगे हैं। मज़ीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। हाँ जी बिल्कुल, आज शहर लाहौर में छुट्टी का रोज़ है और गर्मी का तोड़ने के लिए शहर लाहौर के वासियों ने गन्ने के रॉ का इंतखाब किया है। मैं इस वक्त चौबरजी में मौजूद हूँ, जहाँ पर गन्ने की जो रॉ है उसकी दुकान पर खास देखने में नज़र आ रहा है। जबकि आज अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है और इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत भी 37 डिग्री है। वैसे शहरी मौजूद हैं, चलते हैं, से बात करते हैं। भाई मुझे बताइएगा मौसम की कैसी सूरत हाल है। दूसरा, इसी दुकान का भाईजान मौसम आपके सामने ही है, बहुत ज़्यादा गर्म है। इस मौसम में तो चरिंद परिंद भी छाँव ढूंढते हैं, तो इसमें आपके लिए बेहतर यही है कि ठंडे मशरूबात का इंतखाब करें, फिर ही आप ठीक रह सकते हैं, वरना तो आप बीमार हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि आज के मौसम खासा गर्म है। दूसरा, गर्मी का तोड़ करने के लिए जो है वो गन्ने का रॉ जो है बड़ा मुफीद है, ख़ास तौर पर ठंडे मशरूबात जो हैं वो बड़े मुफीद हैं। जबकि यहाँ पर जो है फैमिलीज़ के हमरा बड़ी तादाद जो है वो गन्ने का रॉ पीने के लिए पहुँच रही है, जिनका ये कहना है कि गर्मी के तोड़ के लिए जो है वो आज गन्ने के रॉ का इंतखाब किया है। मोहसिन नकवी का कौमी क्रिकेट के ढांचे में बड़ी तब्दीलियों का इंदिया। चेयरमैन PCB कहते हैं कि T20 वनडे और टेस्ट क्रिकेट के लिए नई पॉलिसियां तैयार कर लें। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करें। PCB मोहसिन नकवी की LCCA में जारी रेड बॉल कैंप में खिलाड़ियों से मुलाकात। कैंप में तैयारियों के हवाले से जायजा लिया। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PCB ने कहा, आइंदा 2 से 3 रोज में कई अहम फैसले हतमी शक्ल इख्तियार कर लेंगे। शान मसूद की टेस्ट कप्तानी और सरफराज अहमद की कोचिंग के हवाले से अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, जल्द फाइनल हो जाएगा। क्रिकेट के लिए नई पॉलिसियां तैयार की गई हैं। जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा वही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करेगा। बनाने के लिए कंप्यूटराइज्ड निजाम मुतारिफ कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कौमी क्रिकेटर्स की तीनों फॉर्मेट्स में मैच फीस बढ़ाई जा रही है, जबकि डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की फीस में भी इजाफा किया जाएगा। मोहम्मद आकिब, लाहौर न्यूज़। नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में कौमी टीम का रेड बॉल कैंप जारी। मुमकिन खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट की तैयारियों में मसरूफ। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद कहते हैं, ये कैंप खिलाड़ियों के लिए टेस्ट क्रिकेट की तैयारी का सुनहरी मौका है। पाकिस्तान को तवील अरसे बाद मुसलसल 5 टेस्ट मैचेस खेलने का मौका मिल रहा है।
नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रेड बॉल कैंप टेस्ट क्रिकेट की तैयारी का अहम मरहला। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद का कहना था कि टेस्ट क्रिकेट एक मुख्तलिफ और मुश्किल फॉर्मेट है जिसके लिए मजबूत ज़हनी और जिस्मानी तैयारी जरूरी होती है। बाज़ खिलाड़ियों को बैनुल अक़वामी सतह पर खुद को मनवाने के लिए वक्त दरकार होता है। कामरान गुलाम को जरूरत पड़ने पर दोबारा मौका दिया जा सकता है, जबकि इरफान नियाज़ी को भी अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए मजीद वक्त दिया जाएगा। कामरान को तो देखिए हमने लेकर आए, उसने रीजनेबली अच्छी परफॉर्मेंस भी दी, लेकिन उसके बाद आपको देखना ये पड़ता है कि लॉन्ग टर्म कौन आपके साथ बेहतर तरीके से चल सकता है। जहाँ उसकी ज़रूरत होगी, अब हम पहले भी उसे लेकर आए थे। नियाज़ी के लिए भी यही है कि आपको एक जब 2-3 साल से वो काफ़ी क्लोज रहे टीम के भी, बट उसमें आपने अपने आप को उस तरह से सेटल इन होना है टीम के अंदर। अभी भी यंग, अभी हम उनको ट्रेनिंग के ऊपर भी यूएस भी भेज रहे हैं। कोशिश यही है कि जो एक प्लेयर के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आनी है या उसके ऊपर हमने फोकस करना है, तो उसके ऊपर डेफिनेटली इज़ ओनली ए यंग प्लेयर, बट उसको अभी अपने आप को और ज़रूरत है कि अपने आप को और रिफाइंड करे और सेटल हो टीम के अंदर। वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स की तैयारियों के हवाले से गुफ्तगू करते हुए आकिब जावेद ने कहा कि वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए मुनासिब वक्त मौजूद है। एशियन गेम्स के लिए नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई है। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ मोहम्मद आकिब, लाहौर न्यूज़। मंडियों और मार्केट में तेज़ी बदस्तूर मौजूद है। टमाटर और आलू की कीमत बढ़ने लगी है। ब्रॉयलर गोश्त के दाम में मज़ीद इजाफा हुआ तो अंडे के नर्ख भी ढेरे से बढ़ने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सभी के दाम बढ़ने लगे। मार्केट कमेटी ने आलू, टमाटर और भिंडी के निर्ख में इजाफा कर दिया। टमाटर का सरकारी निर्ख 5 रुपए इजाफे से 75 रुपए फी किलो हो गया। ताहम मार्केट में टमाटर 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। आलू भी 5 रुपए इजाफे से 30 रुपए फी किलो हो गया, जबकि मार्केट में मिक्स आलू 50 रुपए और दर्जे अव्वल 60 रुपए फी किलो दस्तयाब है। शिमला मिर्च 185 के बजाय 220 रुपए फी किलो बेची जा रही है। भिंडी भी 10 रुपए फी किलो महंगी 90 रुपए फी किलो मुकर्रर, लेकिन मार्केट में भिंडी 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। इसी तरह प्याज का सरकारी रेट 70 रुपए फी किलो मुकर्रर, लेकिन मार्केट में दर्जे अव्वल प्याज 100 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। लहसुन चाइना 350 के बजाय 400 रुपए और लहसुन देसी 250 रुपए, जबकि लहसुन हरडाई 300 रुपए फी किलो तक है। अदरक थाईलैंड 295 रुपए के बजाय 400 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। लीमू चाइना भी 350 के बजाय 500 और लीमू देसी 180 के बजाय 250 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। फूल गोभी का सरकारी निर्ख 180 रुपए, मार्केट में 200 रुपए फी किलो है। सब्ज मिर्च 120, बंद गोभी और घिया कद्दू 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। ब्रॉयलर गोश्त और फार्मी अंडे भी महंगे हो गए। ब्रॉयलर गोश्त के निर्ख में 60 रुपए फी किलो इजाफा होने से ब्रॉयलर गोश्त का सरकारी निर्ख 417 रुपए फी किलो, जबकि फार्मी अंडे 1 रुपए इजाफे से 202 रुपए फी दर्जन हो गए हैं। शहरी कहते हैं क्या खाएं क्या पकाएं समझ नहीं आती। खीरा, घिया, तोरी, इस तरह सारे मतलब फल भी महंगे ने। गरीब आदमी है, मतलब सोची मैं। मैंने लहसुन, प्याज, अदरक ये खरीदा चीज़ें, 1000 के बिल बन गया। गरीब आदमी तो पिस गया, खास तौर से मुलाजम आदमी। मार्केट सराय के मुताबिक गर्म और मानसून के दिनों में सब्जियों की पैदावार मुतासिर होती है, जिससे खदशा मौजूद है कि चंद रोज तक महंगाई की लहर में तेजी आएगी। पंजाब में 70 रोज़ में 9 करोड़ से ज़ायद शहरियों को मुफ्त सफ़र। हुकूमत ने इस मद में 1 अरब 60 करोड़ रुपए इजाफी सब्सिडी अदा की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि मुश्किल मौशी हालात में आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हुकूमत पंजाब की जानिब से आवाम को मुफ्त सफरी सहूलत फ्राहम की गई। रिकॉर्ड तादाद में शहरी मुस्तफिद हुए। सूबे भर में पब्लिक सेक्टर की 8 ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पर 70 रोज के दौरान 9 करोड़ से ज्यादा अफराद ने मुफ्त सफर किया। हुकूमत ने इस मकसद के लिए 1 अरब 60 करोड़ रुपए इजाफी सब्सिडी भी अदा की। लाहौर पंजाब के 26 अजला में रोजाना 13 लाख से ज्यादा शहरियों ने मुफ्त सफरी सहूलत से फायदा। मेट्रो ट्रेन पर 70 रोज के दौरान तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख, जबकि रोजाना 3 लाख 29 हजार से ज्यादा मुसाफिरों ने सफर किया। लाहौर मेट्रो बस सर्विस पर 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा, जबकि स्पीडो और फीडर बसों पर 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा मुसाफिरों ने मुफ्त सफर किया। मुल्तान मेट्रो बस, रावलपिंडी फीडर रूट्स और लाहौर ग्रीन बस सर्विस समेत दीगर शहरों की ग्रीन बस सर्विसेज पर भी लाखों शहरियों ने सहूलत से इस्तेफादा किया। वज़ीर आला पंजाब का कहना है मुश्किल माशी हालात में मुफ्त सफर अवाम का हक समझते हैं। सिर्फ 70 रोज में तकरीबन 9 करोड़ अफराद को मुफ्त सफरी सहूलत फ्राहम करना हुकूमत पंजाब का मुनफरिद रिकॉर्ड है।